विद्यालय की प्रधानाध्यापिका बेगम जी, मेरे साथी सूर्य प्रकाश कटानी, मेरे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स, पूर्व छात्र खासकर 72 और 79 में जो आज हमारे आमंत्रण पर हमारे साथ हैं, समाज के गण्यमान्य व्यक्तिजन, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आज बड़ी ही खुशी का दिन है। ये स्कूल के लिए एक पर्व की तरह होता है कि हम विद्यालय के 67वें स्थापना दिवस को मना रहे हैं और पीछे जो 66 साल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उसका हम लोग आगे से उसका आकलन करेंगे, क्या हुआ और आगे क्या करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जहाँ तक बढ़ हमने प्रयास किया और पिछले 2 सालों से हम शिक्षा के ऊपर भी भरपूर जोर दे रहे हैं, खासकर प्राइमरी सेक्शन से लेकर के शुरू करके कि हमारा भविष्य, राष्ट्रभाषा से निकले हुए बच्चों का भविष्य अच्छा हो, सुखमय हो। हमारी कोशिश, हमारे सभी एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो हम लोग सदस्य हैं वो सदैव ये कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम हिंदी को उतना इम्पोर्टेंस देते हैं जितना है कि इंग्लिश को। अलग से पेपर हिंदी का रहता है, संस्कृत भी है, सारे विषय हैं। और सही बात है कि हमारे बुजुर्गों ने 1958 में कोई स्कूल नहीं था हम लोगों को, हिंदी भाषी लोगों के लिए उन्होंने बनाया। लेकिन मेरे विचार से भाषा जो है, कोई भी भाषा हो, वो एक माध्यम है, शिक्षा का पैमाना नहीं है। शिक्षा का पैमाना, भाषा केवल एक बात दूसरे आदमी समझ सके, वही एक जरिया है और समय के साथ बदलना पड़ता है। आज 1958 में केवल हिंदी की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन अब क्या है, आगे बढ़ने के लिए साथ में इंग्लिश की भी बहुत ज़रूरत है। आज 1958 में जिन्होंने जो बिजनेस किया था, मेरे ख्याल से उस समय के मांग के अनुसार आज वो बिजनेस कोई नहीं चला रहा है, उन्हें बदलना पड़ा। ये एक बदलाव है और कुछ नहीं है। मैं और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। धन्यवाद। Thank you, Sushil Bhaiya. May I now request our school head of Rashtrabhasha Vidyalaya, Mrs. Manora Begum, to please share her views. Welcome and good morning to all. Respected Chairman Sir and President of today's meeting, Sushil Kumar Kalani, Secretary Sir, and all the executive members, former students, all the teachers, both Rashtrabhasha and RV Public School, my dear students, and all the parents who present here. Today, it is my privilege to stand before you on the momentous occasion of the Foundation Day of this Vidyalaya. As we gathered here to celebrate the Foundation Day, but today, and we should remember the founders of this Vidyalaya. We should remember the former students of this Vidyalaya. We should remember the former committee of this Vidyalaya, all the teachers, ex-teachers, official staff, those who devote their life for this Vidyalaya. And this is no doubt a Hindi medium Vidyalaya, but we try to build up a institution to step with the society. And now the students were very
formative, and we try to proceed them with the society. And no doubt, the academic qualification is essential. Academic excellence is essential, but we try to train them extracurricular activities, computer science, PT, scout and guides, and we try to them all-round development. And we hope our executive committee of the present executive committee help us to progress our Vidyalaya. No doubt, this is a continuous process, and it is not only one person can do it. It is a collective process. It is a collective process, and we gather, we collectively progress the Vidyalaya, and the Vidyalaya, no doubt the Vidyalaya's progress is progressing. And nothing to say about the education. Last year, recently, HSLC result come out, and 100% result of Rashtra Vidyalaya. And Rashtra Vidyalaya is going to a senior secondary Vidyalaya. It is a good news for this society. And we hope from the next year, 11th class will be going to be started. And today I pray to Almighty, may Almighty bless us, bless our teachers, bless our students, and bless our Rashtra Vidyalaya. और मैं इस बीच में हिंदी में 2 शब्द कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब इस विद्यालय में आई थी एज ए असिस्टेंट टीचर, तो हिंदी विद्यालय ही था, और उसी समय मुझे हिंदी इतना अच्छी तरह नहीं आती थी, फिर भी मैं आज वही व्यक्ति को मेरे सामने बैठा हुआ देखा हूँ, और मैं 2 शब्द कहने के लिए आर के मलपानी सर उसी समय सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर था, और हम लोग को बोलने के लिए सिखाया था हिंदी, लिखने के लिए सिखाया था, और सिखाने के बाद हम लोग आज इस पोजीशन पर खड़ा है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। मैं जितना हो सके अपना ड्यूटी को ऑनेस्टली निभाने के लिए कोशिश कर रही हूँ और कर रही हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि राष्ट्रभाषा विद्यालय हिंदी में ही रहे, लेकिन उसका मीडियम इंग्लिश में होना जरूरी है, ड्यू टू लैक ऑफ बुक्स। किताब का प्रॉब्लम है, और गार्जियन चाहते हैं कि बच्चा को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए। ये 2 कारण के लिए राष्ट्रभाषा को इंग्लिश मीडियम करने के लिए हम लोग मजबूर हुए। तो मैं यही कहना चाहती थी, अगर मेरा कुछ गलती है तो माफ़ कीजिएगा, और विश यू ए हैप्पी बर्थडे ऑफ राष्ट्रभाषा विद्यालय। थैंक यू सो मच। निकली है शख्सियत थी, तो अंदर की बात बता दूं, रमेश अंकल अभी भी आप मुझे मिले थे, और मैं बता दूं सबको कि आज भी टीचर्स सारे आपको ज़रूर याद करते हैं और आपके मार्गदर्शन को ज़रूर फॉलो करते हैं। चलिए, अब वक्त आ गया जो हर साल हम वेट करते हैं, और अभी पिछले 3 सालों से ये स्टडी को मेंटेन किया है इस कमेटी ने, और पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए हमने कोशिश की है कि हम पिछले वर्षों के जो छात्र रहे हैं हमारे स्कूल के, जिन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, तो उनमें से आज हमारे बीच है बॉयज़ एंड गर्ल्स, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर 1972 बैच ऑफ राष्ट्रभाषा विद्यालय। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया आप मंच पे आएँ। हेमराज जी मोदी, हमारे पुराने
वर्षों के छात्रों से मिलते हैं और हमारी एक छोटी सी कोशिश होती है इस कमेटी की कि हम उनकी कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर पाएँ। मैं हमारे प्रेसिडेंट सर और चीफ गेस्ट सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि विद फुलाम गमछा एंड टोकन ऑफ लव एक मोमेंटो हमारे 1972 की बैच को दें, हमारी तरफ से एक यादगार मोमेंट। और मैं हमारी कमेटी के मेंबर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस क्षण के लिए हम वेट कर रहे हैं कि वो भी आकर हमें सहयोग करें। तो कमेटी मेंबर्स अरे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी आएँ और इस मोमेंट को लें। प्रेमराज जी मोदी, हरजीत सिंह जी, पवन कुमार जी चौधरी, हमारे बच्चे शायद आपको नाम से नहीं जान पाए, हरजीत सिंह जी, पवन कुमार जी चौधरी, रंजीत सिंह, बलबीर सिंह जी बाबा, जगजीत सिंह जी, प्यारे जी गुप्ता, संबोध जी नाथ, तेल बाल दियो गाड़ी को मीरा के सागर फोटो ही बढ़िया, फोटो ही बढ़िया, अशोक जी अग्रवाल सागत ही बढ़िया आती भाई, तो बोलो ना और शौक है कपूर आ गया मीटिंग है ना प्लेस पे, वहाँ जाने देंगे। चिड़िया चिड़िया जब मैं 52-53 साल पहले की समय में जा रहा हूँ तो भगवान ने मनुष्य का मस्तिष्क भी क्या अद्भुत रचना बनाई है। वो सारे दृश्य चलचित्र के जैसे मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने जैसे कहा, आस्करण जी जालान, स्वर्गीय आस्करण जी जालान, उनका इस स्कूल के विकास में बहुत बड़ा योगदान था। वो लंबी चौड़ी सुदर्शन काया, चेहरे पर स्मित मुस्कान, हाथ में धोती का पल्लू लिए हुए, हम लोग जैसे ही सुबह स्कूल में 9:30-10 बजे पहुंचते थे, वो अपनी टीम के साथ, निर्माण कार्यों की टीम के साथ उपस्थित रहते थे और पूर्ण रूप से निर्माण कार्यों में लगे रहते थे। उस समय यहाँ मुझे याद आ रहा है कि बड़ा सा पोखर हुआ करता था जिसमें छात्र लोग तैराकी करने वाले जो जानते थे वो तैराकी करने जाते थे और हम लोग दूर से खड़े खड़े देखते थे। हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि कैसे पानी में ये कूद जाते हैं। और इसके साथ ही हम लोगों ने जो स्कूल जिस वर्ष से हमने कंप्लीट किया राष्ट्रभाषा 1971, वो स्वाधीन भारत के इतिहास का सबसे गौरवशाली वर्ष कहा जाएगा। उसी समय
भारतीय उपमहाद्वीप में जिन्होंने एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, भारत की अद्भुत विजय हुई, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान का अंग भंग करके बांग्लादेश बनाया गया। उससे पहले हम 1962 के चीन युद्ध में हार चुके थे, पूरा देश हताश निराश हो गया था। उसी समय एक गीत ने पूरे देश की निराशा हताशा को दूर किया था। मेरे कवि मित्र किशन जी बजाज बैठे हुए हैं, वो शायद बता पाएंगे कौन सा गीत था वो जिसने पूरे देश में नया जोश भर दिया था, बता पाएंगे? वो गीत था कविवर प्रदीप का लिखा हुआ ए मेरे वतन के लोगों। और उसी का परिणाम है कि हम लोग 1971 की अद्भुत विजय हासिल कर सके। मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने जैसे कहा कि इस स्कूल का नाम राष्ट्रभाषा विद्यालय है, तो मैं भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि स्कूल का माध्यम हिंदी मीडियम ही रखना चाहिए, अन्यथा इस स्कूल की आत्मा के साथ में अन्याय होगा। आज हम लोग भी इस स्कूल से पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं। हमारे साथ के बहुत लोग, हम लोग किसी जीवन के किसी क्षेत्र में असफल नहीं कहे जाएंगे, और हमारे साथ के कितने बड़े बड़े उद्योगपति, व्यवसायी, डॉक्टर, सीए इसी वकील से हिंदी मीडियम में पढ़ के निकले हुए हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि स्कूल की आप अंग्रेजी भाषा रखिए, भाषा रखने में कोई आपत्ति नहीं है, भाषाएं जितनी सीखी जाए उतनी कम है, लेकिन स्कूल की आत्मा के साथ खिलवाड़ न करते हुए स्कूल का माध्यम आप लोग हिंदी मीडियम ही रखिए। बाकी आज आप लोगों ने बुलाया, बहुत खुशी हुई। सब स्कूल कमेटी को धन्यवाद देते हैं और सबकी स्कूल की मंगल कामना करते हुए तुम भी हैं और प्यारे बच्चों, आज का दिन हमारे लिए तो बहुत ही सुंदर दिन है। आज अपने को बहुत ही मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि यहाँ आज हम लोगों को आने का मौका मिला। और जब बचपन में हम लोग एडमिशन लिए थे यहाँ इस विद्यालय में, तो जिस जगह पे आज भव्य ये सभागार तैयार हुआ है वो नहीं होता था। वो जो पहले वाली पुरानी बिल्डिंग है उसमें हम लोग पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद में असल में मैं दो एक चीज़ कहना चाहूँगा विशेष करके। आज यहाँ आने के बाद उस समय की घटना मुझे याद आती है जब हम लोग इसमें आए हुए थे। बहुत अच्छा लगता था। उस समय के अध्यापक मालीराम जी होते थे, ताराचंद जी होते थे, रविंद्र राय जी होते थे, और कर्ण जी होते थे, और एक बाइडो होती थी आसामी पढ़ाती थी। अच्छा लगता था। लेकिन आज के हमारे जितने भी नए छात्र हैं, बच्चे, वो जरा ध्यान से सुनेंगे। मैं सबसे फिसड्डी लड़का था, सबसे कमज़ोर लड़का था, क्लास में हुआ करता था, लेकिन अपनी पढ़ाई को जारी रखता था। और मैं सोचता था कि जैसे सभापति महोदय ने पहले बताया था कि भाई मन को निराश नहीं करना है, क्योंकि साधारण सा परिवार से हम लोग आते थे। पिताजी भी उतना पढ़ा लिखाई नहीं किए थे, साधारण सा व्यवसाय किए। उसके बाद में उनका मन, हौसला ऐसा होता था कि हाँ, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, वो उनका सोच था। माँ हम लोगों को तैयार करके, खाना बना करके जल्दी जल्दी तैयार करके भेजती थी। उस समय हम लोगों के लायक अगर स्कूल था तो ये राष्ट्रभाषा विद्यालय था, और हम लोग यहाँ, हम लोग और कोई जगह नहीं होता था कि हम लोग वहाँ पढ़ सकें। तो इस विद्यालय को अपना करके हम लोगों ने पढ़ाई यहाँ से यात्रा शुरू की। और आगे पढ़ने के बाद, चूँकि अब उतना बेस मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रयास रखा। उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि उसके बावजूद में भी जो लोग, आज ऐसा कंपटीशन है कि आज के समय में इतना परसेंटेज आता है। भाई गार्जियन सोचता है कि हमारे बच्चे का 99% क्यों नहीं आया, 99% 9 क्यों नहीं आया। बहुत ही टेंशन में रहते हैं कि हम कैसे उसको पूरा करें।
जो लड़के उस निराश मत हो जाइए। ये विद्यालय ही ऐसा है जो बच्चों को बनाता है। इसमें हमारे बच्चे बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े ओहदे तक जाने वाले बच्चे हैं, मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। और चूँकि मैं यहाँ पढ़ने के बाद में कितना भी अगर कमज़ोर था तो थोड़े समय के लिए मुझे दूसरी जगह एडमिशन लेना पड़ा, तो मैं देखा कि वहाँ के बच्चों से मैं कुछ ज़्यादा जानता हूँ। तो यहाँ उस समय भी पढ़ाई का महत्व ये था, और लोग उस समय तो बच्चों को छड़ी लेकर के, हम लोग तो मार खाए हुए हैं, पिटाई होती थी, लेकिन आज यहाँ जो है जितने भी अगर बच्चे हैं उनको अगर कोई कह दिया, कोई अगर टीचर ने कुछ कह दिया तो उसको बुरा नहीं मानना, चाहे गार्जियन को जा करके वो नहीं करना है। आप अपने पढ़ाई में मन लगाइएगा। और हम जो है नहीं पढ़ने के बावजूद में भी आज साधारण सा व्यवसाय करके हमारे लड़के बच्चे, हमारा भी हौसला था, हम लोगों को अच्छे शिक्षा दिए और अच्छा जो है वो लोग आज एजुकेशन लेकर के अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो इस तरह से होता है। तो आप अपने मनोबल को मत तोड़िएगा, आप लोग पढ़ाई करिए। कमज़ोर होने से भी आप अच्छा एक व्यवसायी बन सकते हैं। अच्छा एक समय आने पर जिस क्षेत्र में आपका मन रहता है उसको कामयाब कर सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मुझे अच्छा लगा सबसे बड़ा कि इस कमेटी के आयोजक जो लोग हैं उनको मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इनके मन में ये ख्याल आया कि जो लोग पहले बैच के, जो पुराने बैच के जो छात्र हैं उन लोगों को इकट्ठा किया जाए। कुछ तो प्रेरणा मिलेगी बच्चों को, कुछ तो सीख मिलेगी। उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोगों को एक साथ, एक समय क्लास में हम लोग बैठते थे, लेकिन इस हॉल में भी आज एक साथ बैठने का मौका दिया उन लोगों के माध्यम से। उन लोगों का बहुत आभारी हूँ हम। और यहाँ अगर ये आयोजन नहीं होता तो हम लोगों का तो याद रहता ही, फिर हम लोग कब मिलते या ऊपर मिलते कोई ठीक नहीं था। लेकिन ये एक मिलने जुलने का मौका जो दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अपनी वाणी को हम पढ़ लिख कर आज इस जगह पहुँचे हैं, उस स्कूल में आज फिर हम ऐसे एकत्र हुए हैं। मैं इस मौके पर अपने पुराने शिक्षक गणों को याद करना चाहता हूं, जिनकी अथक मेहनत से ये स्कूल आज जो दिख रहा है इस स्थिति में पहुंचा है। आर.एस. राय जी, करण जी, ताराचंद जी, भंवरलाल जी, आर.पी. सिंह जी, ऐसे अनेक शिक्षक थे जो इतने कर्मठ शिक्षक थे कि एक एक छात्र के ऊपर ध्यान देते थे। आजकल क्या होता है स्कूलों में मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन तब ऐसा होता था। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस सुनाता हूँ, अपना एक तजुर्बा सुनाता हूँ। क्लास 6 तक मेरा ऐसा था कि मैथमेटिक्स में मैं हमेशा बड़ी मुश्किल से पास होता था या फेल ही होता था। तो आर.पी. सिंह हमारे मैथ के टीचर थे। उन्होंने क्या बात है कुलदीप, कहाँ तकलीफ है? तो मैंने बोला मैथ मेरे को बहुत जो है ना कड़ा लगता है, समझ नहीं आता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो आज से बाकी स्टूडेंट को मैं जो सिखाता हूँ पढ़ाता हूँ क्लास में जो चलता है अलग है, तुम्हारे ऊपर मैं अलग से ध्यान दूंगा, तुमको अलग से मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम घर से करके लाना और देखते हैं क्या होगा। तो उनकी मेहनत का फल था और मेरे प्रयास के वजह से मैट्रिक में काफ़ी अच्छे नंबरों से मैंने मैथ पास किया। शायद सबसे ज़्यादा मैथ में नंबर मेरे ही थे उस सेशन में। तो ऐसे शिक्षक थे जो अपनी जी जान लगाते थे बच्चों के ऊपर में, और बच्चों को भी वैसा होना पड़ेगा कि हमारे ऊपर शिक्षक जो ध्यान दे रहे हैं हम भी उतनी ही मेहनत करें। अगर आप लोग जैसे
एनसी करुणानिधि ने बोला मोबाइल की दुनिया आजकल है, तो बच्चे मोबाइल पे खोए रहते हैं। उनका सबसे बड़ा साथी मोबाइल है। सुबह 4 बजे उठे तो 4 बजे मोबाइल, रात को 12 बजे सोए तो 12 बजे तक मोबाइल। तो मोबाइल की वजह से आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत हैम्पर होती है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। हमारे टीचर हुआ करते थे, तो जब हम लोग का एनुअल डे होता था या सरस्वती पूजा होती थी, तो ऐसा ही कुछ फंक्शन होता था। हम छोटे मोटे तंबू लगा करके किया करते थे। सरस्वती पूजा होती थी तब भी टीन की छत लगा के सरस्वती माँ को विराज के हम लोग किया करते थे, लेकिन उत्साह कहीं भी कम नहीं था हमारे में। तो भंवरलाल जी हुआ करते थे, तो उस जमाने में कोरस के लिए उन्होंने एक गीत लिखा था, खुद लिखा था, जो इतना अच्छा था, मेरी आत्मा को इतना छू गया कि आज भी कुछ उसकी लाइनें मुझे याद हैं। सब तुम्हारे साथ है, सामने बढ़े चलो, सामने पहाड़ है तो क्या हुआ, वो तुम्हारी मंजिलों की शाम है। कंटकों को झेलते, सहज को धैर्य को सहेजते, सबको साथ लेके आगे बढ़े चलो। तो ये हमारे शिक्षकगण थे। कितनी काबिलियत थी उन्होंने, कितनी बढ़िया चीज उन्होंने लिखी जो आज भी मेरे दिल में छपी हुई है। तो समय काफी हो गया है। मेरे को खेमराज जी ने बोला कि आप बोलिए बोलिए, तो इसलिए मैंने समय का अभाव देखते हुए भी बोला कि 2 बात अब से करनी अच्छी रहेगी। फिर कब मौका मिलेगा मालूम नहीं है। आप सब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात ज़रूर मैं बता दूं, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि आपने एक परिपाटी सेट की है सरस्वती पूजा की, तो एक बाई डिफ़ॉल्ट इनविटेशन हमेशा मान के रखिए आप सभी जन कि राष्ट्रभाषा विद्यालय में आज भी सरस्वती पूजा उसी तरीके से बनती है जिस तरह से आप लोग बनाते थे। तो आप हमेशा बाई डिफ़ॉल्ट हर साल सरस्वती पूजा में ज़रूर आप यहाँ पर आइए। अब कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ 1979 बैच के छात्र हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कृपया आए और हमें कुछ प्रेरणा शब्दों से प्रेरित करें। गर्ल्स, महेश जी बेड़िया, जुगल किशोर जी सोनी, देवी दत्त जी बेड़िया, जगदीश जी अग्रवाला, महेंद्र जी खेतान, विजय जी अग्रवाला, राधेश्याम जी बजाज, कमलेश जी चौधरी, नवीन जी पौदार, हरीश जी लोहिया, नंद किशोर जी महेश्वरी, जगदीश जी शाह, जगदीश प्रसाद जी शाह, प्रदीप कुमार जी अग्रवाला, द्वारका प्रसाद जी शाह, दीपक जी दिगरा, भगवान लाल जी साहू, सुशील कुमार जी अग्रवाला, हरि गोपाल जी भट्टर, राजेंद्र प्रसाद जी अग्रवाला, नहीं आया, सुरजीत जी सिंह, शारदा मोर जलान, संगीता पिंचा कुशेरिया, श्याम सुंदर जी गट्टानी, रंजना पिरतानी मालपानी, कुसुम पिरतानी बिनानी। आई होप मैंने सभी को याद किया हो।
अगर किसी का रोल कॉल में एब्सेंट लग गया हो तो प्लीज़ मुझे जानकारी दे दीजिएगा। बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज 1979 बैच फॉर यू ऑल। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। एंड मे आई रिक्वेस्ट टू प्रेसिडेंट सर एंड